کہ ہائر مہنگائی عوام کی دہائی۔ فیصل آباد میں گندم کی قیمت آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی، آٹا خریدنا بھی خواب بن گیا۔ ایک ماہ میں آٹا 25 روپے کلو مہنگا ہو گیا، آئندہ روز مزید قیمت بڑھنے کا خدشہ ظاہر کر دیا گیا۔ فیصل آباد میں آٹے کی قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول ہو گئیں، فی کلو آٹا 60 سے 85 روپے تک مہنگا ہو گیا۔ صدر چکی مالکان ایسوسی ایشن علی اکبر کا کہنا تھا کہ حکومت کو اس مسئلے کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ جس باؤ گندم مارکیٹ میں فروخت ہوگی پھر اسی حساب سے آٹا فروخت ہوگا۔ ہم آٹا 85 روپے فی کلو بیچنے پر مجبور ہیں۔ اوپن مارکیٹ میں گندم نایاب ہو چکی ہے، کسی کو بھی گندم نہیں مل رہی ہے۔ ہم بار بار ویپاری لوگوں کو فون کر رہے ہیں مگر وہ ہمارے فون نہیں اٹھا رہے، کیونکہ آنے والے دنوں میں یہ آٹے کی قیمت ہو سکتا ہے 90 روپے ہو جائے۔ دکان پر آنے والے گاہکوں کا کہنا تھا کہ آٹا بہت مہنگے داموں مل رہا ہے، روٹی بھی 15 روپے کی ہو گئی ہے۔ آنے والے دنوں میں اس کے مزید منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ چکی والا جو آٹا ہے وہ اچھا آٹا ہے، اس میں ہر چیز ڈاکٹر کہتے ہیں چکی والا آٹا کھاؤ۔ آٹا مہنگا دے رہے ہیں، گندم نہیں ہے، گندم دی جائے مہربانی جی۔ گاہکوں نے مہنگے آٹے پر اظہار تشویش کی تو چکی مالکان نے گندم سستی کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین شاہزیب علی کے ساتھ عبدالرحمان، فیصل آباد۔ میں گندم کے دام آسمان پر پہنچ گئے۔ چکی آٹے کی قیمت فی من 200 روپے اضافے کے بعد 3000 تک پہنچ گئی۔ شہری دو وقت کی روٹی کے نوالے کو ترسنے لگے۔ کنیوٹ میں حکومتی ناقص پالیسیاں عوام کے گلے پڑنے لگی، ضلع بھر میں آٹے کی قلت کا خدشہ پیدا ہونے لگا۔ گندم کے دام جہاں بڑھے تو وہیں چکی آٹے کی قیمت فی من 200 روپے اضافہ ہو گیا۔ چکی پر آٹے کی قیمت 3000 روپے فی من سے تجاوز کر گئی۔ شہری حکومت پر پھٹ پڑے، کہتے ہیں منہ زور مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے۔ کنیوٹ میں چکی کے آٹے کی قیمت فی کلو 75 روپے سے 80 روپے تک جا پہنچی۔ چکی مالکان کا کہنا ہے کہ غلہ منڈی سے گندم فی من 2500، 2600 اور 2700 روپے تک مل رہی ہے۔ حکومت سرکاری ریٹ پر گندم کی سپلائی کو یقینی بنائے۔ پیٹرول میں اضافہ کیا ہے، ڈیزل اور پیٹرول کا ریٹ بڑھا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرورت اشیاء کی ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، ہر چیز میں ریٹ بڑھ گیا ہے۔ شہریوں نے حکومت سے آٹے کی بڑھتی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین اورنگزیب کے ساتھ عبدالقدیر کلیار، سٹی 41 چنیو۔ آگے بڑھے اور آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرے کہ فیصل آباد ضلع میں 10 کلو گرام آٹے کے 85,300 سے زائد بیگز کا روزانہ کے لیے کوٹا مختص۔ ڈپٹی کمشنر لیفٹیننٹ ریٹائرڈ سہیل اشرف کے مطابق آٹے کی فراہمی بلا تعطل جاری رہے گی۔ فیصل آباد ضلع میں آٹے کی فروخت کے 950 پوائنٹس قائم کر دیے گئے۔ آٹے کی سپلائی فروخت کو مسلسل مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کے شہریوں کے لیے اچھی خبر، ڈپٹی کمشنر زاہد سہیل کی ہدایت پر ضلع بھر میں آٹے کے سیل پوائنٹس کی تعداد 90 سے بڑھا کر 231 کر دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر ٹوبہ زاہد سہیل شہریوں کو سستے آٹے کی فراہمی کے لیے متحرک ہیں۔ ضلع بھر میں سیل پوائنٹس کی تعداد میں مزید اضافہ کر دیا۔ سیل پوائنٹس کی تعداد 90 سے بڑھا کر 231 کر دی۔ خبر شامل کریں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے آفٹر شاکس۔ فیصل آباد کے پبلک ٹرانسپورٹرز نے 25 کلومیٹر کے سفر تک 10 سے 20 اضافہ کر دیا۔ انٹرسٹی ٹرانسپورٹرز نے بھی 100 سے 200 روپے تک کرایہ بڑھا دیے۔ مہنگائی کی رہی صحیح کسر ٹرانسپورٹروں نے نکال دی۔ فیصل آباد میں پبلک ٹرانسپورٹرز نے 25 کلومیٹر سفر تک 10 سے 20 روپے تک کرائے میں اضافہ کر دیا۔ کرایہ ناموں سے کہیں زیادہ کرایہ وصول کیا جانے لگا۔ فیصل آباد سے لاہور کے کرائے میں 70 روپے تک اضافہ کر دیا گیا۔ فیصل آباد سے جنگ، چنیوٹ، تاندلیاں والا کے کرایہ جات میں 100 روپے تک کا اضافہ ہوا۔ فیصل آباد سے ملتان، فورٹ عباس اور سرگودا کا کرایہ 80 روپے تک بڑھ گیا۔ بورے والا اور ساہیوال سمیت دیگر شہروں کے کرائے بھی بڑھ گئے۔ شہری کہتے ہیں کرایوں میں فوری کمی کی جائے۔ یہ سر ظلم کیا جا رہا ہے، پیٹرول مہنگا کر دیا، عوام پریشان ہے، کرایہ نہیں بڑھتی۔ یہ لاہور کی گاڑی لگی ہے، اس کا کرایہ 400 روپے اب 500 روپیہ ہو گیا ہے۔ سواری بیٹھتی نہیں ہے، ہم کھپ جاتے ہیں، ترلے کرتے ہیں، سواری مانتی نہیں ہے۔ سر جی کرایہ کی قیمتیں گھٹائیاں جانا بہت ظلم ہو رہا ہے بھائی سائڈ پہ، آپ کی مہربانی ہوگی۔ اے سی صدر عمر مقبول کا کہنا تھا کہ کرایہ نامہ سے زائد کرایہ وصول کرنے اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں کی جائیں گی۔ ڈی سی صاحب کی خصوصی ہدایت تھی کہ جو ہمارے یہاں پہ نوٹیفائڈ ریٹس ہیں اس کی انسپیکشن کی جائے، اس لیے آج اتوار کے دن ہم یہاں پہ آئے تھے اور لوگوں سے بھی پوچھا ہے کہ اگر کسی کوئی شکایت ہے، کچھ شکایتیں ملی بھی ہیں تو ان کو ہم جو ہے ان کے وہیکل کو یہاں پہ جو ہے سیل بھی کریں گے، ان کو یہاں پہ بند کریں گے، اور یہاں پہ ہم نے کلیئر میسج دیا، میٹنگ بھی کی ہے۔ فیصل آباد سے ڈجکوٹ سمندری کے کرائے میں 10 روپے کا اضافہ کیا گیا، تاحال خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی عمل میں نہ لائی جا سکی۔ کیمرامین عقیل نکاش کے ساتھ عمران اسلم، فیصل آباد۔
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन का फैसलाबाद में बड़ा ऐलान। अपने मुतलका टेक्सटाइल सेक्टर्स को एतमाद में लेकर एहतजाज की कॉल देंगे। एम्ब्रॉयडरी मशीन फैसलाबाद के सदर राना अब्दुल गफूर का कहना था कि अब सड़कों पर निकलना हमारे सनतकारों की आखिरी ऑप्शन है। हमारा सेक्टर तो 60% पहले ही बंद पड़ा है। अब पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने मजीद मुश्किलात पैदा कर दी हैं। बहुत जल्द एहतजाज की कॉल देंगे। कारोबारी लोगों ने सारे सियासतदानों को देख लिया, अब हम अपने लिए खुद निकलेंगे और तमाम एसोसिएशनों से हम राब्ते में हैं। इंशाअल्लाह ताला अब जो एहतजाज की कॉल होगी ये खालिस्तान हम अपने हकूक के लिए खुद निकलेंगे, इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं करना। नायब सदर मियां तारिक का कहना है कि अब कारोबार में इतनी गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि धागा खरीदने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। 11 रुपए यूनिट बिजली बढ़ गई है। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि यहाँ पे जो भी रेट बढ़ाता है वो आपको खामोश ये बात कहकर कर देता है कि अभी 15 रुपए रेट बढ़ा है, बढ़ना 30 रुपए था, तो जो अगले 15 रुपए हैं वो दिन में बढ़ जाएंगे। एसोसिएशन के अहदेदारान का कहना था कि अपनी मुतलका टेक्सटाइल एसोसिएशन के साथ मिलकर अगले हफ्ते ही बड़े लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा, जिसे कारोबार बचाओ मुहिम का नाम दिया जाएगा। कैमरामैन के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की अपील पर मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी जमात इस्लामी का मुजाहिरा। पेट्रोलियम मसनूआत में जालिमाना इजाफे के खिलाफ जिलाई अमीर प्रोफेसर महबूब अल जमा भट्ट की क़यादत में एहतजाज किया गया। तेल की कीमतें बढ़ने पर जमात इस्लामी सड़कों पर आ गई। फैसलाबाद के चिन्योट बाजार में जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के खिलाफ मुजाहिरा किया। इस मौका पर जिली अमीर जमात इस्लामी प्रोफेसर महबूब अल जमा भट्ट का कहना था कि हुकूमत ने IMF की मां पर पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा किया। पूरे पाकिस्तान में ये जो पेट्रोल और डीजल बम गिराया गया है, इसके खिलाफ जमात इस्लामी हर शहर करिया गाँव में ये एहतजाज कर रही है कि ये हुकूमत बड़े दावे के साथ आई थी और पिछली हुकूमत पर तनकीद करके कि जी महंगाई में बहुत इन्होंने इजाफा कर दिया है, लेकिन आते ही इन्होंने उनसे भी 2 कदम आगे बढ़ाकर एक बहुत बड़ा इजाफा जो है वो IMF के हुक्म के मुताबिक किया है। जमात इस्लामी की जानिब से मुनक्किदा एहतजाजी मुजाहिरे में जमात इस्लामी के दीगर अहदेदारों ने भी खिताब किया और हुकूमत को आड़े हाथों लिया। शुरा ने हुकूमत से मुतालबा किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किया गया जालिमाना इजाफा वापस लिया जाए। जमात इस्लामी तो एहतजाज अपना जारी रखेगी और मुख्तलिफ मौक़ात में जब भी सिराजुल हक साहब अपील करेंगे तो हम उसी वक्त फिर सड़कों पर आ जाएंगे। ये तो जमात इस्लामी का हक है एहतजाज। अगर पाकिस्तान में कोई जमात है उसका नाम है जमात इस्लामी। वो किस लिहाज से मैं बताऊंगा कि ना तो वो मुफ्त पेट्रोल लेते हैं, ना वो मुफ्त बिजली लेते हैं, ना वो मुफ्त खोरे हैं। जमात इस्लामी की जानिब से मुनक्किदा एहतजाज में ऐलान किया गया कि अगर पेट्रोलियम की कीमतें कम ना की गईं तो महंगाई मार्च भी किया जा सकता है। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ हाशर वड़ाई, सिटी 41, फैसलाबाद। बिजली बहरान से शहरी परेशान। शहर भर में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शदीद गर्मी, ऊपर से बिजली की बंदिश, शहरियों ने सर पकड़ लिए। फेस्को का शॉर्टफॉल 400 मेगावाट तक जा पहुंचा। डिमांड 3100 मेगावाट जबकि सप्लाई 2700 मेगावाट है। शॉर्टफॉल के बायस शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 5 घंटे तक जा पहुंचा है, जबकि देहाती इलाके 6 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। जंग में लोड शेडिंग के बायस छुट्टी के रोज बाजार सुनसान। भक्कर रोड के पोल्स की तब्दीली के बायस 5 घंटों तक बिजली की बंदिश से शहरी बेहाल है। जंग में लोड शेडिंग के बाद छुट्टी के रोज भी बाजार सुनसान रहे। भक्कर रोड के तोसी मंसूबे के तहत पोल्स की तब्दीली के बायस मुतवातिर 5 घंटे तक बिजली की फराहमी मुनक़ता रही। लोड शेडिंग के बायस दुकानदारों की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। उनका कहना था बिजली की बंदिश के बायस कारोबारी मामला ठप होकर रह गए हैं। अगर हमें एक वक्त बता दी जाए कि इस वक्त हम लोड शेडिंग करेंगे, यानी इस वक्त लाइट रहेगी और इस वक्त लाइट, ये बिल्कुल गैर इलानिया लोड शेडिंग है, इसका बिल्कुल कोई टाइम भी नहीं है वक्त। शहरियों का कहना था कि रोजाना की बुनियादों पर लोड शेडिंग के बायस शदीद गर्मी में कई घंटे बेहाल रहना पड़ता है, जबकि बच्चे भी शदीद गर्मी के असरात से महफूज नहीं हैं। कि हर 1 घंटे बाद जो लोड शेडिंग हो रही है और 2 घंटे बाद आ रही है और 1 घंटे बाद जा रही है, ये सिलसिला जारी है। शहरियों ने फेस्को हुकाम से बिजली बंदिश का सिलसिला बंद करने का मुतालबा किया है ताकि मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41, छंग। फेस्को हुकाम की लापरवाही। शेखुपुरा रोड पर खस्ता हाल पोल्स तब्दील ना हो सकी। बोसीदा पोल्स मौत को दावत देने लगे, किसी भी वक्त हादसा का सबब बन सकते हैं। शहर की अहम शाहराहों शेखुपुरा रोड पर बोसीदा और खस्ता हाल पोल्स नाखुशगवार वाकयात को दावत देने लगे। फेस्को पुराने पोल्स तब्दील करने में सुस्त रवि का शिकार। शहरी खस्ता हाल पोल्स के मामला पर फेस्को पर बरस पड़े। फेस्को की नाकस हिकमत अमली सार्फिन के लिए वबाले जान बन गई। शहरियों का कहना है मुंतखब नुमाइंदगान के दरवाजों पर दस्तक देने का भी कोई फायदा नहीं हुआ और ना ही फेस्को मसाइल हल कर रहा है। जाएं तो कहाँ जाएं। इसी तरह खंबे एक दूसरे के टेक लगा के खड़े किए हुए हैं। जब भी बारिश आती है इनमें करंट भी आ जाता है
और जानी नुकसान भी हो सकता है। तो फेस्को से ये रिक्वेस्ट है कि इन खंभों को तब्दील करे और जितने भी पुराने खंभे लगे हुए हैं इनको भी तब्दील करे और ये टेक वाले खंभे हटाए इधर से। लेकिन कहते हैं अभी खंभे आए नहीं, यही एक बहाना है उनका। शेखपुरा रोड पर खस्ता हाल पोल्स फेस्को की नाअहली का सबूत हैं। कैमरामैन अकील नकाश के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। फैसलाबाद और गिरदोनवा में शाम के वक्त चलने वाली गर्द आलू तेज हवा से गर्मी का जोर टूट गया। हफ्ज़ और गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे। फैसलाबाद और गिरदोनवा में शाम के वक्त चलने वाली तेज हवा ने मौसम सुहाना कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दिन में मौसम बहुत सख्त रहा है, बहुत गर्मी थी, काफ़ी गर्मी बहुत ज़्यादा, तो ऊपर से लाइट बंद हो रही थी, गर्मी और बढ़ गई। तो अभी जो शाम में तकरीबन हबस हो गया था, यकदम ऐसे हो गया था। उसके बाद ऐसे ही अल्लाह ताला ने करम किया कि ठंडी हवाएं चल पड़ी और लुत्फ़ अंदाजी कर रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं। सुहाने मौसम का मजा दोबाला करने के लिए शहरियों ने मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का रुख किया। गर्मा गर्म चिप्स, ड्रम स्टिक्स, शवारमा, बर्गर समेत चिकन पकोड़ा से खूब लुत्फ उठाया। कोन आइसक्रीम के स्टॉल्स पर भी रश लग गया। शहरियों का कहना था कि गुज़श्ता दिनों में हीट वेव से घरों में महसूर होकर रह गए थे। आज मौसम अच्छा हुआ है तो दोस्तों और अहले खाना के साथ बाहर खाना खाने आए हैं। आज मौसम माशाल्लाह बड़ा खुशगवार था, बड़ा प्यारा था। दिल किया है कि चलो कोई फास्ट फूड खा लें, कोई चिप्स वगैरह खा लें, कोई कोल्ड ड्रिंक पी लें। मौसम प्यारा था, इसलिए बाहर आए हैं ज़रा घूमने फिरने के लिए। आज बहुत अच्छा मौसम है, हवा चल रही है और बहुत मज़ा आ रहा है। बाहर बैठ के फिंगर चिप्स खाई है, बर्गर खाया है, शवारमा, कोल्ड ड्रिंक पी है। इतना अच्छा लग रहा है कि ऐसे लग रहा है कि यार आज जो है ना मरी में ही घूम रहे हैं, इतना अच्छा मज़ा आ रहा है। मौसम का हाल बताने वालों ने रमा हफ्ते शहर का मौसम खुशगवार रहने की नवीद सुनाई है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ उस्मान हैदर, सिटी 41। आपको हम खबर से आगाह करें कि फैसलाबाद में तेज हवाओं से फेस्को तरसीली निज़ाम मुतासिर। आफरीदी चौक धनोला रोड तेज हवाओं से बिजली का खंबा गिर गया। खंबा गिरने से मिल्लत टाउन, तंबू कॉलोनी, गोखवाल और ग्रीन टाउन की बिजली बंद। बिजली की बंदिश से शहरी परेशान। फेस्को 3 घंटे गुजरने के बावजूद खंबा खड़ा करने में नाकाम। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद।